Hey friends, welcome back. Today we are going to discuss most important technical basic concept of geometry, Euclid geometry. लास्ट ईयर्स पिछली प्रीवियस क्लासेस में जो आपने ज्योमेट्री की थी लाइन सेगमेंट पॉइंट एवरीथिंग और अब आप कर रहे हो या इन फ्यूचर यू विल डू दिस इज द बेसिक वो कहाँ से आई कैसे बनी क्या रिजल्ट्स हैं दैट ऑल दिस चैप्टर कंटेन द थिंग्स यस नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली or which terminology there is used in geometry and how we solve the geometrical sums. Everything is discussed. So first we will start what is Euclid. So Euclid is basically a Greek mathematician and called father of geometry. Yes, Euclid is a great mathematician called as father of geometry, is a Greek, belongs to Greece. He has written one book named Elements, which is divided in 13 chapters or you can say 13 parts. Yes, he has written a book named Elements, divided in 13 chapters, you can say 13 parts. In each chapter, he has mentioned the full geometry from point up to higher classes. Geometrical theorems are there. So everything is mentioned. Before starting this concept, he has given some terms like axioms, postulates, lemma, theorem. These four technical terms are there and students always confused in these four terms. So in this chapter we will discuss axiom and postulates in detail, but I'll tell you about lemma and theorem. What is theorem? Theorem is a simple language, is a result with geometrical proof. Yes, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना हुआ है that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, लेकिन इसका एक प्रूफ है जो पहले 10th क्लास में था बट अब वो डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई एनसीईआरटी की तरफ से. तो this is called Pythagoras theorem. Reason this result have a geometrical proof, so that is called theorem. Now we have lemma. What is lemma? Lemma is a self-proven result. I am telling you with totally simple language. Yes, मतलब इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं होता. ये रिजल्ट अपने आप में सेल्फ प्रूवन होता है. अब आप बोलोगे सर कैसे? बैक टू 6th क्लास 5th क्लास हम लॉन्ग डिवीजन करते थे. नॉर्मल डिवीजन सिखाई जाती थी हमें. तो उसके बाद टीचर ये बोलता बेटा वेरीफाई करो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो वी वेरीफाई अवर डिवीजन विद दिस एंड दिस इज लेमा. Yes, this is lemma because there is no proof of this result. This is self-proven in itself. So we have talked about lemma and theorem. What is theorem? Simple result with the geometrical proof, and lemma is only result which is already self-proven. No need of proof is there. Now we will discuss about axioms and postulates in detail. So let us start about axioms. Euclid has given 7 axioms. Yes. अब भाई ये axiom क्या होता है ना? Axiom is basically a self assumption, you can say, but not specifically applicable in geometry, but in all universe. Yes, axioms are
यूनिवर्सल सेल्फ assumption. हाउ? एग्जाम से पता चलेगा. वेरी फर्स्ट रीड करो. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, इक्वल्स टू वन अनदर. अब ये क्या हुआ भाई? मान लो ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास भी 100 है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग विल बी इक्वल टू वन अनदर. तो दोनों के पास सेम अमाउंट है. तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो हमें पता था. ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज अ यूनिवर्सल assumption. वी नो दैट. बट यूक्लिड has made that axioms in form. Second, if equals are added to the equal, then wholes are equal. How? Suppose two children have rupees 100 with themselves और उनके पापा ने पॉकेट मनी के लिए 50 रुपीज दोनों को, इक्वल अमाउंट दोनों को दे दी. तो दोनों के पास फिर क्या होगा? इक्वल ही होगा. सेम थर्ड है, सेकंड में ऐड किया था, थर्ड में इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब दोनों के पास 100 है, दोनों ने एक ही चीज 20 रुपीज की परचेज की, तो इट मींस बोथ हैव लेफ्ट विद इक्वल अमाउंट. तो सेकंड एंड थर्ड you can compile in one also, that if equals are added to equals or subtracted to equals, then the total or remainders will also be equal. Next one, things which are coincide with one another. अब ये क्या चीज है? I have left and right hand. जब मैंने इनको एक के ऊपर एक कर दिया, ओवरलैप कर दिया, तो क्या हुआ? कोइंसाइड हो गए. दोनों एंगल से दूसरा फेस नहीं दिख रहा. कोइंसाइड, एंड दैट विल बी इक्वल. गॉट इट? एंड दिस एक्सियम लीड्स टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी यही होती है ना, ओवरलैपिंग, सेम इन साइज, सेम इन शेप. व्हेन वन थिंग, वन प्रोडक्ट और वन हैंड और वन आर्टिकल इज कोइंसाइड और ओवरलैप with each other, second one, then they are equal. Next, the whole is greater than the part. Yes, I am taking 1 kg और 1000 ग्राम. तो अब इसके पार्ट्स क्या हो गए? हाफ kg, 1/4 kg, 2/5 kg, 400 ग्राम all, and all these will be less from this and whole is always greater. आपके दिमाग में वही चीज है, सर ये तो हमें पता है बेटा, आई नो यू नो थिंग, बट आई एम टेलिंग द एक्सियम्स. अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया, सपोज आ गया इन केस कहीं, हाउ मेनी एक्सियम्स आर देयर, राइट ऑल एक्सियम्स, देन यू शुड नो अबाउट दिस. नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल, देन दैट विल बी इक्वल. यस, अब वही बात, एडेड वाली उसको डबल कर दिया. टू स्टूडेंट्स हैव 100, उनकी अमाउंट डबल होगी. अगेन दे हैव इक्वल अमाउंट. फिर डबल कर दी, तो ऑब्वियसली अब यहां पे हम डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं. तो जो डबल का, तो विल स्पेसिफाई बिकॉज यूक्लिड हैज मेंशन अबाउट डबल ऑनसे, दैट इज इक्वल. एंड द सेकंड, इफ दीज आर हाफ्स, अगर इनको हाफ कर दिया इक्वल्स को, तो अगेन दैट विल बी इक्वल. तो यू कैन कंबाइन दिस ऑल्सो, दैट थिंग्स which are double or halves of the equals or same thing, then their equals or halves or doubles will also be equal. So these are 7 axioms of Euclid, which are, what are axioms? Universal self-assumption, not only applicable or specific up to geometry, but up to the universe. Now we move to next part, postulates. There are 5 postulates. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सियम्स में और पोस्टुलेट्स में. ये भी सेल्फ अजम्पशंस हैं. तो फिर आप सोचोगे सर वो भी सेल्फ अजम्पशन है, ये भी सेल्फ अजम्पशन है, तो वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री तक नहीं थे, वो यूनिवर्स में अदर एरियाज ऑल्सो, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू ओनली ज्योमेट्री. यस, ये सिर्फ ज्योमेट्री का. दिस इज अ डिफरेंस.
Axiom relates to all universe in every phase. It's not only geometry in every part, either algebra or arithmetic in your practical life. But postulates are only sticked to geometry. Is it okay? Very first, a straight line may be drawn from one point to any other. We know if this is one point, तो कोई भी और दूसरा पॉइंट हो, कोई भी एक, तो वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ठीक. अ टर्मिनेटेड लाइन, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेटली इन अ स्ट्रेट लाइन. यस वी कैन. अगर एक लाइन है हमारे पास, फिक्स्ड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो इनडेफिनेटली उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन. थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड सेंटर. अगर हमारे पास एक पॉइंट सेंटर आ गया, ऑब्वियसली अ सेंटर मींस वी हैव अ पॉइंट एंड अ रेडियस एंड अ मेजरमेंट ऑफ रेडियस, वी कैन ड्रॉ ए सर्कल. सपोज यहां पे मैंने सेंटर लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, और रेडियस सपोज 3 सेंटीमीटर बोल दिया, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन कंपास 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ सर्कल. 3.5 बोल दिया, यू विल डू 2.5 बोल दिया. तो वी कैन ड्रॉ ए सर्कल if we need the center, a point where we have to draw, and a radius of how much measurement we have to draw the circle. And the fourth, all right angles are equal to one another. तो अगर इसको एक्सियम के साथ बोले इक्वल टू वन अनदर इज ऑल्सो इक्वल, फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, तो ऑब्वियसली ऑल राइट सब 90 है. एंगल ए इज 90, बी इज 90, सी इज 90. All are equal to one another. And the most important postulate is last one. ये है क्या? पहला तो इतना बड़ा देख के आपके दिमाग में होगा सर इसको पढ़ेगा कौन, और पढ़ेगा जब माइंड में पहले एक बैरियर लग गया तो समझेगा कौन. तो लेट मी टेल यू नाउ, आराम से पढ़ते हैं इसको. A straight line falling on two straight lines. फॉलोइंग का मतलब दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको एक इंटरसेक्ट कर रही है. ये डायग्राम से कुछ याद आ गया, पैरेलल लाइन वाला. यस, अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द एंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. ये लाइन, ये आप इस तरफ कर लो या आप ये कर लो, इंटीरियर एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स. अब ये दोनों एंगल ले लिए इस तरफ, क्योंकि उन्होंने लेस देन 90 बोला है, कहने का मतलब अक्यूट बोला है, तो क्लियर है वी विल टेक दिस पार्ट लेस देन राइट एंगल. वरना ऑप्शन दोनों की थी, अगर बोलते ग्रेटर देन राइट तो वी मूव टू दिस साइड, बट दे हैव मेंशन्ड लेस देन टू राइट एंगल्स अक्यूट, तो वी विल मूव टू राइट. देन पहली कंडीशन क्लियर होगी, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइंस where the interior angles are acute angles. मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं आपको. The two straight lines, if produced indefinitely, meet on that sides, यहां पे कहीं मिलेगी, on which the sum of angles is less than टू राइट एंगल्स. अब ये क्या हुआ, ये कंफ्यूजन अब मैं बताता हूं. जब हमने इसको इंक्रीज किया तो ये क्या बन गया, पहला क्वेश्चन ट्रायंगल बन गई. ट्रायंगल बन गई ना. तो जो दोनों ये अक्यूट जो एंगल हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जब हम इनको प्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल मीट, तो इन दोनों का जो सम होगा वो लेस देन 180 होगा. ऑब्वियसली है, दोनों अक्यूट एंगल है पहली बात, और सम ऑफ अक्यूट एंगल इज लेस देन 180, पहली कंडीशन. दूसरी, ये ट्रायंगल बनेगी. जब ये ट्रायंगल बनेगी तो तीनों एंगल, आई एम गिविंग द नेमिंग, सपोज ए बी सी, तो वी नो इन अ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी 180. जब तीनों का सम 180 बनेगा तो
a प्लस बी तो क्लियर है ना, 180 से कम ही होगा। c की कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगी, चाहे 1 डिग्री भी हो। आई एम सेइंग चाहे 1 डिग्री भी हो मिनिमम। तो a प्लस बी 179 होंगे, तो ये दोनों का सम क्या होगा? लेस देन 2 राइट एंगल्स, लेस देन 180। दिस इज बेसिकली, दिस इज पोस्टुलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल पोस्टुलेट, क्योंकि यहां से हमारा पैरेलल लाइन का रिजल्ट बनता है। कैसे बनता है? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। अगर वी हैव टू केसेस, आइदर दिस और दिस। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है अगर ये दोनों अक्यूट हैं, लेस देन 90 हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, है ना? तो ये बन जाएगी ट्रायंगल। बट अगर ये दोनों 90 हैं तो दे विल नेवर मीट। एम आई राइट? नेवर मीट, तो लाइन पैरेलल। आगे वो तो बात की कंडीशन है, अभी फिलहाल हम 90 और लेस देन 90 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहां पे यूक्लिड ने अक्यूट की फॉर्मेशन नहीं की थी। ही नोज ओनली राइट एंगल। तो वी डोंट नो अबाउट अक्यूट एट दिस स्टेज, वी डोंट नो अबाउट, दैट इज अ जस्ट टू टेल यू व्हाट इज देयर। तो इफ दीज आर लेस देन 90, तो these will be produced and meet, then their sum is less than 180। तो यहां पे पैरेलल मैं बना रहा हूं अपना, तो अगर ये दोनों 90 होंगे और ये 180 के इक्वल होंगे, तो इसका मतलब they will never meet, और that leads to our topic parallel lines। तो यहां से अपना पैरेलल लाइन का आगे टॉपिक एक लीड्स होता है। सो आई गॉट यू गेट द यूक्लिड ज्योमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एक्सियम्स, व्हाट इज पोस्टुलेट्स, है क्या, डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज होंगे, थ्योरम क्या है, लेमा क्या है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर बेसिक एंड क्रक्स ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री फॉर यू। थैंक यू।